platform. Prior to that, engaged in information science domain more than a decade. During he worked in various segment information and knowledge centers, ranging from CSIR, NL Lab to ISC's Secretariat Library, Vidhan Shodh, to engineering from Life Science Research and Development Center. He had introduced several innovative services, internal auditor of ISMS certificate, developing SOPs for knowledge center, user awareness training sessions, budget policy matters, customer services, handling and managing scientific patent and business literature and databases. He visits various profile management, etc. He is a very passionate and passionate about his guest lecture, and he's very passionate motivational speaker also, and so on. So I welcome you, sir. Are you audible, sir? Good afternoon, madam. I can hear you. Oh, all right, sir. I hand over the mic to you, sir. Please start our session. So can we learn various things, which is very useful our PhD journey. Thank you, sir. Welcome you, sir. All right. Uh, uh, Good afternoon. Thank you, Sony ma'am, for nice and brief introduction about You me. can, you can call me Neha, sir. It's okay. Okay, no issues. Okay. May I audible? No, ma'am. Yes, Correct. sir. You Yes. are Okay. absolutely audible, but you are Uh, not visible. I think you are not I visible. have switch off my video. That is the Oh, reason. oh, okay, sir. Okay, sir. Hmm. Okay. So I'll open at the end of the session. No issue, madam. Good afternoon. Shall I start or I need to wait because still your colleagues are joining? Sir, you can start. They will join. Oh, they will join. Okay. 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 Good See, one. afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good So I'm afternoon, sir. requesting, Good afternoon, sir. yeah, I'm requesting Good all the afternoon, sir. parts. I'm Good afternoon, requesting sir. मेरा विनम्र विनंती all the participant to please mute your the mic at the back end or else it will disturbing me. So when you want to ask आपको कोई प्रश्न पूछना चाहे तो उसी वक्त आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो. Okay, just you can mute your the mic at the back end. So I hope most of the faculty members, those who are present here, आपके पास already you have already received the credential. So anybody, if you have received any credential, any of them, please say yes or no, or yet to be received. Faculty members. So in the participants among the faculty members, anybody आपके पास कोई credential मिला क्या ना मिला मैं पूछ रहा हूँ. So if anybody has received, just to say yes, I think. If you have not received, no issue. Just you can get back to your librarian, a university librarian. He will create and give it to the provide the credential to the all the eligible faculty members. So now I am sharing my screen. Just to let me know is it visible or not. विजिबल नहीं है सर. No, sir. No, sir, it is not visible yet.
just I'm sharing the my screen. Just a minute. This. Okay, sir. Take time. No, just a minute. I'm sharing. Okay. So is it visible, madam? No, sir. The Not screen is visible. visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. Now sir. it is visible. Yes, sir. Visible है. Yes, sir. हाँ, Now it's आपको visible. हाँ visible है ना मैडम? Yes, sir. So this is our web page www.drillbitplagiarism.com है. अभी ये विजिट वेबसाइट को विजिट होने के बाद आपके पास क्रेडेंशियल है तो अभी आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे उपयोग करना है आपको मालूम नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. You should go to the support function here. So you go to support function and click on the user guide. क्लिक करें तो आपको एक मौका मिलेगा ऑर्गेनाइजेशनल यूजर गाइड. ये 3 पेज का लिटरेचर है. अभी आप गो थ्रू दिस 3 पेज का लिटरेचर आपको पूरा अंदाज मिलेगा फ्रॉम द लॉगिन पेज टू द डाउनलोडिंग ऑफ द रिपोर्ट. कैसे लॉगिन करना, कैसे फोल्डर क्रिएट करना है, क्या क्या मैंडेटरी एक्सक्लूज करना पड़ेगा एज पर द यूजीसी नोटिफिकेशन, कैसे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो पूरा डिटेल उधर में लिखा है मैडम. वो 3 पेज का लिटरेचर है. ये डाउनलोड करके आपके डेस्कटॉप में आप सेव करो. आपको लॉगिन करने के वक्त आपको कैसे यूज करने का कोई दिक्कत हो गई तो इसका हेल्प आप ले सकते हो. उसके अलावा आप come to the bottom of the website, you will find the YouTube link. आप इधर क्लिक करेंगे तो it will take you to the YouTube link. I will tell you, just you have to go through this YouTube link, Drillbit Plagiarism Folder Management Admin and User. ये 3 मिनट का वीडियो है. आपको वो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा. कैसे लॉगिन करना, कैसे अपलोड करना, फोल्डर कैसे क्रिएट करना, कैसे अंडरस्टैंड करना. अभी आप फैकल्टी मेंबर से आपका कोई पब्लिकेशन उधर में हाईलाइट कर रहे तो कैसे एक्सक्लूड करना, ऑल दोज इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगा. उसका रनिंग टाइम है 3 मिनट है. आप एक आपका डाउनलोड करेंगे तो वो भी मिलेगा यूजर गाइड. अभी यूजर गाइड में आपको कुछ अंडरस्टैंड नहीं होगी तो आप यू शुड check the YouTube video. So this is about the self-help, because how to take the help of the available support function. So now we get inside the tool. So you can click on the get started here. You can always आपका user name would be the mail ID. सो क्रिएट आपका लाइसेंस क्रिएट करने के वक्त आपका यूजर आईडी आप दिएगे तो एडमिन को आपका यूजर आईडी वुड बी दी मेल आईडी वुड बी दी यूजर नेम. आपको क्रेडेंशियल इट विल automatically redirect to the your mail ID. So the admin or vendor does not have control over the credential. Once they created, if I'm created the some of the faculty member behalf of your admin, so I does not have any control over the password. It will automatically generate and go to your respective mail ID. आपका क्या मेल आईडी दिया तो उसी मेल आईडी को डायरेक्टली वो पासवर्ड जाता है. अभी उसका मेल आईडी है support@drillbitplagiarism.com. वही मेल आईडी से आपको क्रेडेंशियल मिलता है. तो इवन दो आप आर्ग्यू करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका मेल आईडी इज द यूजर नेम एंड आप फॉरगेट पासवर्ड यूज कर सकते हो. आप फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करेंगे तो आपको एक मौका मिलेगा री पासवर्ड सेट करने के लिए. यू कैन रीसेट द पासवर्ड एंड स्टार्ट यूजिंग द टूल. सो इज देयर एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. Okay.
अभी लॉगिन होने के बाद you will come to this home page. Here you will find the 4 different functionalities: dashboard, my folder, repository, and settings. This is one of the extra security layer we recently incorporated to avoid the misuse of your credential. For example, you don't want to misuse of your credential. If you are click on switch on this one settings, so each and every time after login it will asking you to the entering of OTP. So when you are doing the transaction in the banking no sites, it will each and every transaction they're asking the OTP. The similar technology we have adapted here to avoid the misuse of your credential. You can make use it, and anytime you can switch off also. Switch on and switch off option हम कस्टमर को दे दिया है, कस्टमर they can make use it. So now you go to the dashboard. डैशबोर्ड में आपका न्यूमेरिकल डेटा मिलेगा, स्टैटिस्टिकल डेटा. सो अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरे को लाइसेंस मिलने के बाद कितना फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, कितना डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया है अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट अलोकेशन. सो वो डेटा मेरे को जरूर चाहिए. वो डेटा आपको इधर मिलेगा, कितना फोल्डर आपने क्रिएट किया है, कितना डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट रिसेंटली आपने अपलोड किया है, वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इधर. एंड आपको कम डाउन you will get the statistical data. This is monthly statistical data automatically generated from the tool. So you want to get to know that how many documents have been uploaded and processed in the month of January, in the month of February. Each month it will automatically generates on the basis of number of documents uploaded by the respective customers. सो वो डेटा आपको ज़रूर इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अभी आपका यूनिवर्सिटी में कोई कमिटी विजिट करेंगे तो कोई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन चाहिए तो डेटा, अभी वो डेटा आपको you can get the here. There is no need to download the different file format we are given. For example, even though it is generated here, you want to use this data for the PPT presentation or any presentation. So just you can copy this file format and use it, and you can let them to get to know that what is the usage of the plagiarism tool since आपके इंस्टीट्यूशन में लाइसेंस मिला है, वो डेटा है. अभी वो ट्रेंड एनालिसिस है, आपको मालूम है एज पर यूजीसी गाइडलाइंस 2018. So it has been clearly says that 10% is the acceptable level of your submitting thesis to the irrespective of university, if the university is adherent to the UGC guidelines 2018. So what it will indicates that, so मैंने सो फॉर 828 डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, उसमें 75% का डेटा मेरा जुनाइन डेटा है, वो सिमिलर डेटा है. इधर इट विल शो यू माई जुनाइन डेटा है, 25% सिमिलर डेटा है. सो अभी इफ आई वांट टू कंप्लेंट्स टू द UGC guidelines, it should be 10 and below 10%, it should be the 90 and above 90% to ensure that I have completely stick to the UGC guidelines 2018. So it will give the rough idea about the individual customer to the what is the percentage of own content and similar content. And this is a document type. See, आपको I will explain you. So डॉक्यूमेंट अपलोड करने के वक्त हमने एक ऑप्शन दिया है कस्टमर को, यू कैन सेलेक्ट द व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू आर अपलोडिंग. आप सिर्फ रिसर्च पेपर लिखा है, थीसिस लिखा है, डिसर्टेशन लिखा है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखा है, आपका इंस्टीट्यूशन में वो कॉन्फ्रेंस अरेंज किया तो उसकी बारे में आप कॉन्फ्रेंस प्रोसीड लेना चाहे तो उसमें आप 15, 20, 25 आर्टिकल आप
compile करके एक proceedings if you are releasing, no, so such kind of document if you want to upload, no, it will quantify and reflecting here in the pictorial format what type of document you are uploaded since your institution is having the license, so that data is available here. So मैं पूछना चाहता हूँ पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन है रेस्पेक्ट टू द डैशबोर्ड में, ये पूरा स्टैटिस्टिकल Yes, sir. इन्फॉर्मेशन देगा. Sir, one question from my side. या मैडम प्लीज मैडम. Sir, like इसको ये जो software है, Drillbit is it a software, sir? या मैडम. हाँ जी. तो सर इसमें हम हमारा जब थीसिस पूरा हो जाएगा ये रिसर्च वर्क तब हम अपलोड करेंगे या फिर पहले ही तो कुछ आधा वर्क हो जाए तो भी अपलोड करके देख सकते कि हमारा कितना % जो है किसी की मतलब किसी के रिसर्च वर्क से या फिर किसी आर्टिकल से मैच कर रहा है. हम बीच में भी आधा वर्क को भी जैसे सिनॉप्सिस को भी अपलोड करके देख सकते हैं कि ये शो तो नहीं कर रहा है कि कुछ प्लेगैरिज्म हम लोग कर रहे हैं. ऐसा हमें कैसे पता चलेगा कि किसी से मैच तो नहीं कर रहा हमारा स्टडी जो हो रहा है? ऑब्वियसली मैडम आप राइट क्वेश्चन पूछा है. अभी हमारा शोध गंगा है, कोड़ा क्या पूरा शोध गंगा का हम डिटेक्ट कर सकते हैं. वो शोध गंगा है ना. अभी आप थीसिस करने के कंप्लीट होने के बाद आपका थीसिस आप उधर रिपोजिट करते हैं. नंबर 1 आपका सिनॉप्सिस अप्रूवल होने के बाद भी आप उसमें अपलोड करना पड़ेगा. वो और एक प्रोग्राम है वो इन्फ्लेटमेंट का. सो आप अपलोड करेंगे तो आपका क्या पूछा है आधा होने के बाद आप अपलोड करके प्लेगरिज्म चेक करेंगे तो अभी क्या 50% ऑफ द वर्क व्हाट यू हैव डन इन दैट if you are having any similar content definitely it will showing madam told क्या Sir, क्या am I similarity है. audible? yeah madam please. hello please. hello hello Priyanka ma'am. Audible, sir. Audible. someone is asking question, please go ahead madam. Yes, sir. She's Priyanka ma'am. She's asking a question regarding plagiarism. But right now she is not visible. Okay, no issues. Let them ask, no issues. Shall I proceed? Yes, sir. So we can no issues. If you are having questions, we can have it at the end of the session also. बीच All में right, आप sir. पूछ सकते हो. अभी पूछेंगे तो जल्दी पूछो. अभी क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन होता है अभी अदर लोगों के लिए. जी, sir. You Okay. may continue, sir. So next we come to the my folder. This is very important. See, in Drillbit, before upload the document, you have to create the folder. So the reason behind we are given the concept of creating the folder is that, see, आपका university में so many faculty members are working, so many departments है, so many subjects are there, so many छात्रों ने पढ़ रहा है डिफरेंट ईयर में. वो छात्रों ने फर्स्ट ईयर रिसर्च स्कॉलर, सेकेंड ईयर रिसर्च स्कॉलर, फाइनल ईयर रिसर्च स्कॉलर, ये थर्ड ईयर रिसर्च स्कॉलर, ऐसा डिफरेंशिएट होता है ना. अभी आपको कोई फॉर एग्जांपल आई बिलोंग्स टू दी कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, so I had given one document to the library coordinator for checking in the month of November last week. So now I want to have that report again. So if that library coordinator not created folder in computer science and uploaded my document, given document in that folder, it's very difficult for him or her to get back to the whatever I requested the same report for the second time. So that is the reason we are given the folder concept. अभी उन्होंने लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर साइंस फोल्डर में मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो तो अभी मैंने 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद में भी उनको जाकर मैंने अप्रोच किया तो वो डॉक्यूमेंट मेरे को फिर चाहे तो उन्होंने वो रेस्पेक्टिव फोल्डर को जाकर रिट्रीव करके it will deliver to the respective users. So that is the reason you have to create the folder. You go to the plus mark here and give the folder name. Folder name you can give either it belongs to the chemistry, biology, mathematics, physics, life science, fine arts, literature,
languages, any department or faculty wise, A, B, C, X, Y, Z, or also subject wise, आप क्या subject or department or you belongs to the respective department. So it's a wish of the customer to create a folder in their convenient, which will help them to retrieve back to the previously submitted documents. So I had given the folder name, and also this is very, very important. So I am requesting all the participant to ध्यान से सुनो, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप थोड़ा गलती किया तो इधर सिलेक्शन करने में इट इज हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप इन जनरेटिंग द सिमिलैरिटी परसेंटेज, उधर इम्पैक्ट होता है. इसी के लिए एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस 2018 दैट नोटिफिकेशन clearly says that some of the common item existing in the uploading document needs to be excluded from the comparing highlighting as a plagiarized text. वो reference and bibliography, आप इधर आर्टिकल लिखो, थीसिस लिखो, डेजर्टेशन लिखो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखो, कोई डॉक्यूमेंट आप लिखो, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आप यू आर गिविंग द लिस्ट ऑफ द रेफरेंस पार्ट, those thing you need to exclude, you have to select this. and double quotes, क्या करेगा, मैंने मेरा थीसिस में लिख रहा हूँ, मैंने कोई बुक कंसल्ट किया है, सो व्हाट आई हैव टू डू, सो मैंने एक लाइन और एक पैराग्राफ ले लिया है, वो मेरे को पसंद लग रही है, सो बिना वो इंक्लूड नहीं करेंगे तो मेरे को ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करेगा. सो मैं क्या करूँगा, डबल यूनिटेड दे देगा. बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पैराग्राफ आई एम गिविंग डबल इन्वर्टेड comma, and also I am giving end of the reference part also I am mentioning where I have taken that particular paragraph. So that also you need to select the yes. And here exclude source, you have to upload the thesis, you select the yes. आपको research paper check करेंगे तो no करो. So I am uploading here thesis kind of document, I am selecting yes. And also you can exclude phrase filtration, this is very important. You can select करो आपका यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल आई एम बिलोंग्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा. So this phrase is existing multiple time in uploading document. I want to exclude this phrase from the highlighting of the plagiarism. If I filter here, so while comparing this document to the database, the tool will not highlight as a plagiarized text. So you can filter. This is where you can filter the standard phrase. And you can click on the submit. So you can you don't do anything here. This is the auto select. This will going to compare in all these resources. Then you can click on the submit button. So do you have any question here, because this is very important part. If you have done slightest mistake here in selecting the standard settings, it will going to impact on similarity percentage. It's very, very important है. अभी कोई प्रश्न है तो इसके बारे में पूछ सकते हो. If you are not having, no issue, you can. Sir, there was, yes, I have a doubt, sir. Yes, So ma'am. there was a network issue from my side. Sir, could you please explain it again, sir? Thoda sa, like after selecting any thesis from this, what we are supposed to do? Enter कर दिया, suppose हमने enter करा है यहाँ पे हमारा folder name. After that, See, आपका फोल्डर नेम देने के बाद मैडम आपको रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी यस सेलेक्ट करना पड़ेगा. okay. एंड कोड्स यस सेलेक्ट करना पड़ेगा. एंड एक्सक्लूड स्मॉल सोर्स भी यस करना पड़ेगा. द फर्स्ट It is saying exclude means we are not supposed to include. We are not supposed to write down the references. No, madam, you need to exclude the reference part. Right, sir. See, you are writing the thesis, end of the your thesis, you are given all the list of the reference part, correct? References, correct, sir. Those things as per the guidelines you should not consider as the plagiarized text, correct?
Yes, sir. So, if you are not selected yes, the tool will going to highlight whatever the reference part you are given. It will picking the similar text from that reference part also. It will increase the percentage, correct? Yes, sir. You need to select the yes. Okay. And quotes also you need to select the yes. Okay, And sir. small source means up to 14 common words, 14 consecutive words. If you go through the policy document, it has been clearly mentioned. It's available in the InflabeNet website, that UGC policy document. So I have to select the yes. Okay, sir. Then phrase filtration, you can give it. For example, you are pursuing Sir, PhD in the English I'm department. can in, you, I'm from like sir, can you repeat physical the education. excluded school source? Hello, please, sir, I am requesting madam is discussing. Once finish the madam, I will take your question, sir. Madam, tell me. Yes, You belongs proceed, to sir. physical Physical education. You education. can give, madam, whatever. Just I Okay, am giving okay. the example here, madam. Yes, sir. You Yes, sir. belongs I to the got it. physical education, literature, English, mathematics, whatever you can give it here. Just I am Right, showing sir. the example. That's all. Yes, sir. Okay, madam. Is it clear? हाँ जी हाँ. Yes, sir. It is clear. Thank you, madam, sir. sir ने पूछ रहा था, please. Sir, Hello. can you explain the excluded small source Exclude again? reference वाला जो part है. Small source, sir, you have to select the yes, sir. आप अभी आपको What is the thesis, meaning of excluded small source? What is the meaning? it is given, no, sir, 14 similarity words. 14 similarity words. It is, could you able to see here? It's Yes, showing sir. the Yes. meaning. Yes, sir. It has been taken from the policy. It has been given in the UGC guidelines. 14 Yes. common words or 14 consecutive words. Also. For the thesis only, not for the manuscript. Oh, yes, sir. Sir, can we include more word in excluding phrase? More word in excluding phrase? Only for department, money, one word? Department of Fine Arts, Kota, University, Kota. And more word at? More word you can add up to 10. Oh, But up you to should 10. be standard. You should not use copy and pasted content. You should not give it here. You can give it to your submit, university will not going to consider, correct? Yes, sir. You should be very careful, that one. Thank you, sir. Okay, shall I proceed? Any other questions? Yes, sir. So, your folder has been created. Is it visible, your folder? Yes, sir. Now we need to upload the document. क्या करना पड़ेगा? You have to click on the folder. So अभी प्लस मार्क को जाना पड़ेगा. क्लिक करेंगे तो आपको 3 लैंग्वेज अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा. अभी हमारा ड्रिल बिट में लोकल लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट में भी अपलोड करके आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो. अभी क्या है ना, अभी आपका यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन द राजस्थान, करेक्ट? If your university is having the languages from the Rajasthani language, Hindi, Urdu, Sanskrit, Gujarati, Assami, any South Indian languages files or document आपके पास है, अभी वो भी डॉक्यूमेंट आप चेक करना चाहते हो, you can use the regional. अभी फॉरेन लैंग्वेज का फाइल आप चेक कर सकते हो. आप सेलेक्ट करो नॉन इंग्लिश. So I am selecting the English file. So अभी select करने के बाद आपको get 4 different type of document and bulk load option आपको मिलेगा. Scanned PDF. So I will give one example. अभी कहीं दिन पहले मैंने एक यूनिवर्सिटी को गया था. अभी यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी मेंबर है, मेरे को पूछ रहा था. उन्होंने एक डॉक्यूमेंट स्कैन किया है, कन्वर्टेड इनटू पीडीएफ. वो डॉक्यूमेंट वो प्लेगरिज्म चेक करना चाहते हो. सो मैंने बोल दिया उसको भी ऑप्शन हमारा पास है ड्रिल बिट में. यू कैन यूज द स्कैन्ड पीडीएफ. इफ यू आर हैविंग सच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, यू कैन यूज द स्कैन्ड पीडीएफ. अभी जिप में क्या करेगा, अभी आपका लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर को मोर देन 50 स्टूडेंट ने, छात्रों ने उनके पास आकर वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया एंड 1 और 2 घंटे बाद वो रिजल्ट चाहिए तो they can use the zip file. So this is the
option you will get to upload the bulk document. Up to 100 document you can upload and check the plagiarism here in the zip. You have to compress all the document, convert it into the zip file, and you can upload and log out, and you can engage in your other activities. After a couple of hours, re-log in, and you will get the result individual document wise. Even though I am uploaded 100 document, you will get the drill bit report for individual document from 1 to 100. So it will save the time. To save the time, you can use this option, or else you have to upload each file after file. गूगल ड्राइव, सो आपको मालूम है अभी मोर देन 10 MB का फाइल यू कैनॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट इन एनी ऑफ द ईमेल प्लेटफॉर्म. वो सच बिगर साइज फाइल आप गूगल ड्राइव में सेव किया तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन एंड अपलोड एंड चेक द प्लेगरिज्म. सो अपलोड फाइल, दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ अपलोडिंग द फाइल. हम उधर मेंशन किया है डिफरेंट फाइल फॉर्मेट. So we get lot of queries respect to this one also from the research community and faculty members that सर मेरा पास अभी मैंने वो मेरा डॉक्यूमेंट PDF में है, डाक में है, docx में है, txt में है, अभी ड्रिल बिट सपोर्ट करते हो ना करते हो. सो इसी के लिए हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप इधर दिया है. सो इफ योर डॉक्यूमेंट इज इन एनी ऑफ दिस फाइल फॉर्मेट यू कैन अपलोड एंड चेक द प्लेगरिज्म. अभी 2-3 फाइल आप एक ही समय में चेक करोगे तो उधर भी ऑप्शन है, यू कैन यूज द मल्टीपल फाइल्स. अप टू 15 फाइल्स यू कैन अपलोड एंड चेक यूजिंग द मल्टीपल फाइल. 16 फाइल टू अप टू 100 फाइल यू कैन यूज द zip format. And we have mentioned what is the document length, up to 800 pages. So I don't think more than 120 to 150 pages it will not exceeding the thesis. Exceptional cases are there. Some of the literature or architecture may be having more number of pages. So this is the digital file size. So if you are having 100 MB, you can check the file. So now you have to click on the file. So do you have any queries here? So any queries? No, sir. Okay, so you have to click on it here. No, sir. Hello, sir. Tell me, madam. Please continue, sir. I am We don't uploading, have any madam. I am uploading the file. So I have uploaded the file. So after uploading the file, you have to give the mandatory field of who is the author of the document. So you have to give the author of the document, what is the title of the document, and आपको select करना पड़ेगा अभी 30 इधर. So then you can click on the submit button. So I want to clarify one thing in drill bit. So in the drill bit mein, whatever the options you are executing, after that you will Sir, get PPT is not visible. not PPT, madam. I am showing the sharing the screen now. Okay, sir. Sir, your screen not- is not visible. Screen भी share screen So your नहीं होगी. screen is not visible. You are still in the previous स्क्रीन में screen. नहीं दिख रही. No, sir. No, still you are in the previous screen. No, sir. Your screen is not visible. Okay, I will reshare it. Just a minute, I will reshare it. Okay, sir. Now is it visible, friends? No. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, visible. Visible, sir. Yes, sir. हाँ, sir. अब Okay.
अभी मैं क्या बता रहा था, अभी ड्रिल बिट में वॉट एवर द फ्यूचर ऑप्शन इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग यू विल गेट द अलर्ट मैसेज. So now your uploaded document started analyzing here. So commonly questions, since we are supplying to the UGC has started giving implement drill bit to the all the higher education institution. So we get the queries from the customer side that whatever the document they're uploading in the drill bit, it's going to sit in the repository. Because पहले आप यूज कर रहे थे टूल, उसमें टूल में क्या होता है ना, अभी अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिकली इट विल गोइंग टू सिट इन द रेपोजिटरी. अनलेस अनटिल आप डिलीट नहीं करेंगे तो एडिटेड डॉक्यूमेंट और अपलोड करेंगे तो सेकेंड टाइम इट विल शोइंग द 100% सिमिलरिटी. सो इन द ड्रिल बिट whatever document you are uploading, it will not automatically saved in the repository. बट हमने ऑप्शन दिया है, अभी आप ये बटन क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सेव टू रेपोजिटरी. वो दिखा रहे ऑप्शन सेव टू रेपोजिटरी. जी सर. Yes, sir. If you are click this option, then only will get the option to save to document, or else automatically मैंने वो क्या अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट इट विल नॉट गोइंग टू सिट इन द रेपोजिटरी. सो इट टेक्स 3 to 15 मिनट्स. आपने वो रिफ्रेश किए तो आपको रिजल्ट मिलेगा. So I will take you to the. So is it visible that percentage 19%? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So the result came 19%. Now we need to download the report. So you have to find here, because most of them are asking, sir, wait, sir, I am not finding where to download the report, sir. So result आने के बाद आपको अंडर एक्शन इधर ऑप्शन मिलेगा, डाउन आरा मार्क है ना इधर. So आप क्लिक करेंगे तो so you can click on the yes, you will download the PDF report. So you can. So I'm requesting participant to please mute, or admin should mute all the participants. So one question. Huh. This 19%, it was showing 19% similarity. Correct. Means कि कहीं से जो data है, this file is including data from somebody else research work. Is it so? It means like this. ये 19% what it shows. No, this is the. I will explain you, madam. I'm coming to that point. ठीक है sir. I will show you that. Huh? हाँ जी, thank you. So I'm requesting participant to mute yourself, please. So I have opened the report. Is it visible? Report? Or still Yes, you are sir. in the previous screen? Yes, sir. It is Yes, visible. sir. Yeah. This is first part. You will get to know that who is the author, title, number of pages, and everything, and followed by similarity percentage, and also followed by you will get the pictorial representation. So we had given to help the author community or users to get to understand that what is the percentage of content has been taken from the similarity from the belongs to the which source and what percentage. So it will helping the author community to reduce the similarity percentage as per the institution or university where they are going to submit the document as per the guidelines. Yes sir. So this is exclude information. So while creating the folder, we have chosen some standard exclusion, correct? That Yes, is sir. also captured here. And one more rare feature you will find in the drill bit is QR code. क्या Oh, होता है nice. ना, Yes, sir. the present the student community wants to be share the report via social media because they want to have the report through their WhatsApp. So what you have to do, you scan this QR code, download the report and send it across QR code, WhatsApp. So host, I am requesting again, please mute the participant backend
So some of them are they have switch on their mic. It was disturbing me. Niki- Nikita, please mute your mic. Please mute the mic. Someone. Nikita, can you hear me? Please mute your mic. Yes, sir. You may continue, sir. Yeah. So this is the report because we are here incorporated UGC grading system. So आपका मालूम है बिफोर 2018 एंटायर इंडिया में कोई स्टैंडर्ड नहीं था 2018 बाद so entire higher education institution across India it become a mandatory to submit the plagiarism certificate and make sure that below 10% of submitting thesis. So if it is they have categorized plagiarized document in 4 grade A, B, C and D. So A grade means 10%. मैंने बोल दिया ना अभी मेरा thesis 10% generate हो गए तो मैं without any fear I can submit my thesis to the respective university for my PhD degree award. So इधर मेरा 19% है मेरे को responsibility है it has to bring it back to the below 10%. And also here matched source and B grade. These are the matched domain. This is the percentage and source type. If you come down, तो आपको दिखा रहे हैं इधर एक्सक्लूड फ्रेज कि आप क्या क्या फ्रेज एक्सक्लूड किया है while creating the folder वो भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं रिपोर्ट में. It does not mean that whatever I had given it's nobody is bothering. So it will details are hidden while you are share your screen. So it will not going to be hide and seek. So whatever exercise you are doing while uploading the document, everything will reflecting in the report. So if you come down, so you can able to see here the similar text highlighted in the different color, gray color, green color, blue color. So are you following the colors? Each color represent the specific source. आपने किस सोर्स में सिमिलरिटी टेक्स्ट पिक किया है वो सोर्स दिखा रहा है. So do you have any queries report? So I am take you to the analysis part. सर ये इंग्लिश कम समझ में आ रही है हमारे. क्या सर? Actually, sir, the problem is that we have so many Hindi medium scholars. हाँ in our हिंदी में भी coursework मैं यूज कर classes. रहा हूँ अभी. So, हाँ हिंदी में भी मैं यूज कर रहा हूँ मैडम. हाँ तो सर. अभी रिपोर्ट में आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो. मैं दिखा रहा हूँ अभी हाँ जी, कोई छात्रों ने कॉपी किया तो किस लिंक में कॉपी किया वो पूरा डिफरेंट कलर में दिखा रहे हैं इधर. बिल्कुल सर. ईच कलर रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक सोर्स मैडम मैं वो बता रहा हूँ. सर अभी आपने बताया कि ये जो ग्रेड है ABCD. या अभी वो एज पर द पॉलिसी डॉक्यूमेंट अभी ये अच्छा ग्रेड है ना. हाँ जी सर. एक ग्रेड है इसका क्या पनिशमेंट पे पूरा वो डॉक्यूमेंट में लिखा है. अभी आपको इन्फ्लुनेट साइट में जाएंगे तो आप खुद डाउनलोड कर सकते हो वो रिपोर्ट. 2080 यूजीसी गाइडलाइंस का नाम है. सो हाउ टू अपहोल्ड द एकेडमिक एथिक्स एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगियरिज्म वो पॉलिसी का नाम है. अच्छा. वो यू कैन डाउनलोड. आपको खुद अंदाज मिलेगा मैडम. एंड आपको एक एक ग्रेड में क्या करेगा कैसी पनिशमेंट में वो पूरा दिखा है. स्टूडेंट को छात्रों को क्या होता है फैकल्टी मेंबर को क्या होता है वो पूरा लिखा है मैडम. जी कोई सर. प्रश्न ये है अभी? हाँ या पूछो मैडम. सर ये जो सॉफ्टवेयर है टोटली हमारे सिर्फ थीसिस के लिए प्लेगरिज्म चेक करेक्ट के लिए मैडम. मतलब एग्जैक्टली आर्टिकल अगर हम करना चाहें या सिनॉप्सिस वगैरह तो उसके लिए नहीं है. मैडम यू कैन यूज द सिनॉप्सिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द थीसिस. करेक्ट वो आप हाँ चेक सर. कर सकते हो. सो आर्टिकल के लिए आप मैं क्या रेकमेंड करूंगा क्या होता है ना अभी सो फार वी हैव नॉट गॉट द एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम द रिजेक्शन. अभी आर्टिकल अभी आप इधर चेक करेंगे तो अभी वो एलसीवेयर को कोई इधर सबमिट करेंगे तो अभी वो
वो क्या करेगा, अलग ही टूल में वो चेक करेगा. So you can use it for only for the thesis purpose, madam. All right, sir. Thank you, sir. Hmm? ठीक है. So Thank you. okay, shall I proceed? Yes, So sir. मैं आपको Yes, sir. so I came back to the screen. So I am came back to the screen. Is it visible the screen or still you are in the report? I want to take you to the analysis part. Yes, sir. It is visible. विजिबल है ना? अभी Yes. रिजल्ट आ रहे हैं. अभी आपको क्या क्या फ्यूचर है ड्रिल बिट में देखना चाहिए, तो अभी मैं क्या रिक्वेस्ट करेगा, आप इधर क्लिक करना पड़ेगा. परसेंटेज आ गए है ना, वो परसेंटेज में क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होता है. So it has opened new window. Participant, are you still in the previous window or transit to the new window? बता दो मेरे को. Yes, sir. न्यू विंडो Yes, sir. न्यू विंडो दिखा रहे हैं ना? जी सर. हाँ, ओके. अभी इधर परसेंटेज दिखा रहे हैं. क्या परसेंटेज सिमिलरिटी है? दिस इज द मैच्ड सोर्स. यू कैन एबल टू सी हियर व्हाट आर द मैच्ड सोर्स एंड यू विल गेट टू नो दैट हाउ मेनी सोर्सेस हैव बीन कंसल्टेड. मैंने किस किस सोर्स में सिमिलरिटी चुन लिया है, पूरा लिस्ट वो दिखा रहे. अभी क्या होता है, हमारा एक कॉमन हमको प्रश्न पूछा है कोई कस्टमर ने, सर मैंने रिसर्च कर रहा हूँ, अभी आपका फाइनल थीसिस सबमिट करने के पहले एज पर द गाइडलाइंस आपको 2 और 3 पब्लिकेशन होना चाहिए. वही बारे में एक मैडम ने प्रश्न पूछ रहा था, करेक्ट? अभी आपका पब्लिकेशन को आप एक्सक्लूड करना पड़ेगा. अभी क्या है ना, अभी मेरा थीसिस में अभी पब्लिकेशन है सर, वो मेरा ओन पब्लिकेशन है, वो मेरे को एक्सक्लूड करना पड़ेगा. वो एक्सक्लूड करने का ऑप्शन कहाँ है? ड्रिल बिट में पहुंचेगे तो इधर मिलेगा मैडम. अभी मैं 7 नंबर है ना, इधर 7 नंबर में सेलेक्ट करेगा, मेरे का एक्सक्लूड करने का ऑप्शन मिला. वो दिखा रहा है एक्सक्लूड का ऑप्शन इधर. अभी मैंने क्लिक करेंगे तो 1% कम होता है. देखो इधर परसेंटेज कम हो गए ना. हाँ सर. पहले Yes. 19 था, अभी 18 हो गया. हाँ जी, सर. हाँ, 1% कम हो गई मैडम. वो भी कहाँ है? वो भी बॉटम में है. अभी फिर आपको इंक्लूड करना चाहते तो अभी एक क्लिक करेंगे तो आपको मौका मिलेगा. जस्ट यू क्लिक ऑन द इंक्लूड, it will come and sit in the matched source. अभी it is come again 19%. वो exclusion मैंने दिखाया है. So it is also call it as a self plagiarism, self exclusion. Okay. अभी इधर dual navigation, अभी वो क्लिक करेंगे तो beginning letter highlights and goes. आप ध्यान से देखो इधर मिडल ऑफ द डॉक्यूमेंट में बिगिनिंग लेटर हाइलाइट्स एंड गोस आपको दिखा रहा है चेंजेस. मैं लेफ्ट साइड क्लिक कर रहा हूँ, मिडल पेज में हाइलाइटर बिगिनिंग लेटर हाईलाइट हो रहा है, वो दिखा रहा है क्या? अभी ऐसे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट, यू कैन सी द लेफ्ट. लेफ्ट साइड इट इज हाईलाइटिंग एंड यू वांट टू सी द फुल टेक्स्ट, यू क्लिक ऑन इट हियर. आपको इधर क्लिक करेंगे तो आपको ओरिजिनल सोर्स में लेकर जाता है. आपको खुद मालूम होता है कहाँ से टूल ने सिमिलरिटी टेक्स्ट पिक किया है. So I am again requesting, please mute backend. So this is chat GPT content. ये 3% है ना. आपको सी 2023 में मोस्ट टॉक्ड टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी है. तो आपको खुद सस्पेक्ट हो रहे हैं. अभी उधर छात्रों ने यूज किया है ना किया है, उपयोग किया है ना किया है. अभी चैट जीपीटी है, बार्ड है, क्विलबेट है, सारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल अवेलेबल है डिजिटल प्लेटफॉर्म में. किसी का किसी टूल यूज करके कोई कंटेंट लेकर
अभी सबमिट करने का डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया तो ड्रिल बिट में दिखा रहे कितना परसेंटेज कंटेंट वो ले लिया है। वो आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको खुद मालूम होता है, वो कंटेंट हाईलाइट कर सकते हैं कलर में। So you can see here. So is it visible, the highlighted paragraph? Yes, sir. Participant? Yes, sir. Visible हो रहा है. Yes, sir. Yeah, Yes, this sir. is चैट जीपीटी कंटेंट। मैंने चैट जीपीटी से पैराग्राफ ले लिए चेक करने के लिए, खुद वो दिखा रहे हैं ये पैराग्राफ मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टूल से ले लिया है। उसमें टोटल डॉक्यूमेंट है क्या परसेंटेज है वो भी दिखा रहे हैं। अभी कोई ये रिपोर्ट चाहिए तो डाउनलोड करने के लिए हम ऑप्शन दिया है इधर। आप क्लिक करेंगे तो यू कैन डाउनलोड द रिपोर्ट एंड आप भेज सकते हो किसी को, ऑथर को। कोई पूछेगा तो अभी कोई आर्गुमेंट करेगा मैंने नहीं उपयोग कर रहे हैं, गलती दिखा रहे हैं, अभी मेरे को रिपोर्ट चाहिए। अभी उसी सिचुएशन में आपको हम डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, ये डाउनलोड करके रिपोर्ट वो भेज सकते हो आप। तो कोई प्रश्न है चैट जीपीटी में बारे में? Yes, कोई sir. पूछ रहे थे? My question, sir. हाँ बोलिए मैडम। सर मेरा नाम विभा है, मैं एजुकेशन इस सब्जेक्ट से हूँ। मेरा क्वेश्चन मैडम। है कि हमें ये ड्रिल बिट का उपयोग किस स्टेप पे करना होता है? किसी कौन से स्टेप पे करना होता है? मतलब हमारा पूरा जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, पेपर हमारे पब्लिश हो उससे पहले करना होता है ना? तो Correct. फिर बाय द वे हमें जैसे इसमें मिल गई कि 90% सिमिलरिटी मिल रही है, समानता मिल रही है किसी से, तो फिर हमें अगला स्टेप क्या होता है? हमें क्या करना होता है फिर? नो अभी क्या पूछ रहे हैं, अभी आपका आर्टिकल पब्लिश हो वो भी पार्ट ऑफ द रिसर्च आप पब्लिश किया है ना, वही पूछ रहे हैं ना मैडम आप? सर शी इज आस्किंग अगर हमारा सिमिलैरिटी आ जाता है यहाँ पे 40-50% भी, तो नेक्स्ट हाँ। स्टेप क्या करना है स्कॉलर को? स्कॉलर को रिड्यूस करना पड़ेगा मैडम। अभी क्या है ना, एज पर यूजीसी का गाइडलाइंस में 10% फिक्स किया है। आपका यूनिवर्सिटी में मालूम नहीं है, आपका कोटा यूनिवर्सिटी में भी 10% फॉलो करेगा 20% फॉलो करेगा, मेरे को मालूम नहीं है। अभी आप 10% है। 10% एज पर यूजीसी आप फॉलो करोगे ना। अभी मैं वो स्टेप दिखा रहे हैं मैडम, अभी मोरली कैसी रिड्यूस करना पड़ेगा वो स्टेप मैं दिखा दूंगा। थोड़ा 5 मिनट पेशेंस में वेट करो, अभी मैं अदर स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं वही स्टेप आने के बाद मैं बता दूंगा मैडम कैसे रिड्यूस करेगा सिमिलैरिटी परसेंटेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एथिकली। तो दिस इज ईमेल नोटिफिकेशन, आपको मेल से वो रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। पहले क्या करेगा, हम वो डाउनलोड करके जीमेल गूगल आउटलुक ओपन करके अटैच करके वो फाइल भेज सकते थे। अभी वो स्टेप अवॉइड करने के लिए हम इधर ऑप्शन दिया है ईमेल नोटिफिकेशन। अभी आपका यूनिवर्सिटी में मैंने बता दिया 20%, मैंने मेरा परस्यूइंग यूनिवर्सिटी में 20% एक्सेप्ट करेगा। मैं आई वांट टू सेंड दिस रिपोर्ट टू दी ऑथर। मैं क्या करेगा, अभी मेल आईडी दे रहा हूँ। अभी you can keep on copy for yourself also. This is bulk mail, you have to type the valid email IDs, so it will avoid the conventional way of sharing the document. QR कोड वे अभी आपको रिपोर्ट में मिस हो गए तो इधर भी आपको मौका मिलेगा QR कोड का स्कैन करके डाउनलोड करके रिपोर्ट आप भेज सकते हो। So this is save to repository. This is wish of the customer. आपको जानना चाहते हो आपका डॉक्यूमेंट रेपोजिटरी में सेव करने का, आप सेव कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका विश है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। आप चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डिजिटल रिसिप्ट है। अभी क्या है ना, अभी आपको रिसिप्ट चाहिए तो इधर आपका प्रिंट ऑप्शन है, आपको सर्टिफिकेट प्रिंट ले सकते हो। अभी इधर मैंने एक कंपनी लॉगिन से मैंने लॉगिन किया, इसी के लिए कंपनी लोगो एंड कंपनी नाम दिखा रहे हैं। आप आपका यूनिवर्सिटी क्रेडेंशियल से लॉगिन किया तो आपका कोटा यूनिवर्सिटी राजस्थान एंड यूनिवर्सिटी का लोग इधर दिखा रहे हैं, वो रिसिप्ट है।
ये फाइल इंफॉर्मेशन में ये कहीं लोगों ने आप पूछ सकते हैं मेरे को मेरा अपलोड फाइल का बेसिक डिटेल जानना चाहते हो, कितना पेजेस से, कितना लाइन से, टोटल सेंटेंस कहाँ है, वर्ड काउंट कहाँ है, वो पूरा डिटेल्स आपको इधर मिलेगा। ये डाउनलोड ऑप्शन है, और एक बार आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इधर 2 फाइल ऑप्शन आपको मिलेगा। अभी आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो, अभी आप एचटीएमएल फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो। ये सेटिंग्स है। तो कहीं लोगों ने पूछते हैं अभी सिमिलरिटी परसेंटेज जनरेट होने के बाद में वो सेटिंग चेंज करना चाहते हो, इसी के लिए उधर भी ऑप्शन है। अभी आफ्टर जनरेट हो गई है, इधर आप कोई चेंज करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, इधर यू कैन मेक यूज द ऑप्शन। तो मैडम वो पूछ रहे था अभी रिपोर्ट 30-40% जनरेट हो गई है तो छात्रों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, वो रिड्यूस कैसे करेगा मैडम। अभी वो इधर करो, डुप्लीकेट फ्रेज में आपको नंबर देना पड़ेगा, क्या है मैंने 10 नंबर दे देगा। सो आपको दिखा रहा है मैडम, इधर लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ टाइम अकरेंस है, वही फ्रेज है मैडम। अभी बीइंग ए ऑथर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आई कैन use retain 1 or 2 time where it's necessity and required, and rest of the place I can replace। मैंने चेंज किया तो वो phrases क्या दिखा रहा है इधर, obviously it will reduce the similarity percent। this is the one ethical way of reducing the similarity percentage मैडम। मैडम मैंने आपका प्रश्नों का आंसर किया मैडम, so I hope मैडम I have answered your question। सर व्हाट इज दिस 10? हम ऐसे ही रैंडमली लिख रहे हैं 10 और कुछ no यानी स्पेसिफिक मैडम है? 3 to 15 मैडम, इधर सी एंटर अभी इधर नंबर ऑफ लिखा है ना 3 to Yes. 14, अभी मैं 7 लिखा हूँ जस्ट। इफ इट इज Sir, may एग्जिस्टिंग I इट विल ask शोइंग। you? Sir, may I Okay, ask you a sir. question? या मैडम प्लीज मैडम। सर अभी आपने बोला कि चैट जीपीटी जो इसमें हेल्पफुल है प्लेगरिज्म चेक के लिए, ठीक है। हम्म बट सर समटाइम्स ऐसे सुनते हैं ना कि चैट जीपीटी का डेटा भी ऑथेंटिक नहीं होता है कभी कभी, मैडम मतलब मैडम अभी हाँ जी सर। till the only they consider the similarity percentage मैडम, you forget about the chat gpt। अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है छात्रों ने कितना परसेंटेज कंटेंट उपयोग किया है चैट जीपीटी का, वो दिखा रहे हैं। so I am not going to debate here whether the chat gpt generated content is genuine or not genuine, correct? ओके सर। It's not yeah मैडम। बट सर अगर हमने हमारी थीसिस में कुछ हेल्प चैट जीपीटी की ली है, ले लो मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम। मैं अभी यूज करने का बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है मैडम, अभी उपयोग करेंगे तो कितना परसेंट है आपका उपयोग किया है वो दिखा रहे हैं ड्रिल बिट में, वो बता रहा हूं मैं। ओके सर। एंड स्टिल आपको सिमिलरिटी परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द चैट जीपीटी परसेंटेज, इट इज जस्ट अलर्टिंग कितना परसेंटेज है। ठीक है सर। ओके मैम। ओके सर, थैंक यू। तो अभी मेरा का सेशन का एंड होने का टाइम आ गई है। अभी 2 इम्पोर्टेंट फ्यूचर आई एम एक्सप्लेनिंग बिफोर गोइंग टू कंक्लूड। अभी 2 अच्छी चीज बताना चाहिए अभी ड्रिल बिट के बारे में। कोई एक है मैं बता दूंगा। सो जस्ट सो आई ओपन्ड आउटलुक, इज इट विजिबल फ्रेंड्स? Yes sir, it is visible. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So I am requesting those who are having the access credential, not everyone, among the participant, those who are participated है ना सेशन में, उसमें कहीं को एक्सेस है यूज करने का, उन्होंने नोट डाउन दिस मेल आईडी analysis@drillbitplagiarism.com। मैं एडवांटेज बता दूंगा आपको। क्या हो गए ना, आपको बिजी है, आपको जरूर जल्दी रिपोर्ट चाहिए,
आपको समय नहीं है प्लेटफॉर्म को जाकर लॉगिन होकर अपलोड करके रिजल्ट को इंतजार करने का, इसी वक्त आपको आपका रॉ फाइल analysis@drillbit plagiarism को भेजेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी से आपको कम से कम 5 मिनट में आपको 5 मिनट अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। दिस इज ईमेल सबमिशन, दिस इज ईमेल सबमिशन। आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी से वो फाइल भेजना पड़ेगा। एंड द लास्ट इट मींस हमें खाली अपना थीसिस अपलोड करना है, उनको मेल करना है। हाँ मैडम, अभी आपको मेल करने के पहले आपको एक्सेस होना चाहिए। आपको आपके पास आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी से भेजना पड़ेगा मैडम। ठीक, रजिस्टर्ड मेल आईडी मीन्स आपको एक्सेस होना चाहिए। सर ये Yes, पेड sir. फॉर्म है ना? पेड फॉर्म है ना ये सर? पेड का नहीं है मैडम, आपको और एक फीचर बता रहा हूँ मैडम। अच्छा, ये फ्री है, आपका पैकेज में मिल रहा है मैडम, क्योंकि अभी आपके पास हमारा क्रेडेंशियल है ड्रिलबिट का, है ना। आप बहुत बिजी है, आपको अभी अपलोड करने का क्या करेगा, आपको प्लेटफॉर्म को जाना है, लॉगिन करना है, अपलोड करना है, रिजल्ट को इंतजार करना है ना। दीज स्टेप्स हैव टू फॉलो नो। अभी यू डज नॉट हैव एनी टाइम, आपके पास समय नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी तुरंत आपको रिजल्ट चाहिए। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी से वही analysis@drillbitplagiarism.mail आईडी को आपका थीसिस का रॉ फाइल भेजेंगे तो कम से कम 5 और 10 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मेल से मिलेगा। तो आपको क्या है ना समय, so you will save the time, within 5 to 10 minutes you will get the result, but you have to send the file with your registered mail id। आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी से आपको भेजना चाहिए। अभी फाइनल बता रहा हूँ, बाद में मैं सेशन ओपन कर, प्लीज म्यूट, इट्स echoing प्लीज। So you are emphasizing on registered mail ID. Correct. As we all are having these IDs are registered only, means officially we are using or something else. Officially you have the access madam, registered mail id means you are having the access of Drillbit, All right. having the access that you got it। Okay sir, yes Okay. sir, we have to कि आप में log रिसर्च in. स्कॉलर, हाँ, लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पास है Yes, तो sir. वही मेल आईडी के, सी बिकॉज इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बैक एंड आवर सर्वर नो मैडम। Yes, I got you sir, thank you sir. हाँ, सो फाइनल है प्लग इन ऑप्शन में दिखा रहा हूँ मैडम, सो प्लीज म्यूट रिक्वेस्टिंग। So it will not take another 5 minutes. I'm concluding session. I'm opening the Word file. Is it visible? Just you can let me know. I have opened the Word file. Is it visible? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Visible, sir. Yeah, see, you are all familiar with the citation formatting because आपने manuscript लिखेंगे तो बिफोर आप सबमिट करने के पहले इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जर्नल आपको कहीं जर्नल का साइटेशन का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। इसी के लिए आपको कई टूल्स अवेलेबल है। अभी एंडनोट है, जटोरा है, मेंडिले है। वो जैसी हमारा ड्रिलबिट भी हैविंग द प्लग इन ऑप्शन। अभी आप समझो ये मेरा थीसिस है, मैंने पूरा लिखा है। अभी इसी वक्त में प्लेगरिज्म चेक करना चाहे तो मेरे को प्लग इन ऑप्शन है, मैं क्या करना, इधर जाएगी तो आपको दिखा रहा है, एडिंस दिखा रहा है इधर राइट साइड टॉप Yes, में। sir. Yes, sir. आप क्लिक करेंगे तो मोर एडिंस है, यू कैन क्लिक ऑन इट। आपका सर्च बॉक्स मिलेगा, उधर आपको ड्रिलबिट टाइप करना पड़ेगा। तो जस्ट यू कैन क्लिक ऑन द ऐड, कंटिन्यू, and you will get the right side of your document, you will find the login page। आपको दिखा रहा है login page। अभी login करके आप अपलोड करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आप खुद प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। सो आर एल्स इनिशियली
पहले क्या करना पड़ेगा आपको, प्लेटफॉर्म को जाकर अपलोड करके चेक करना पड़ेगा, है ना। अभी आपको कंप्लीट हो गए थीसिस, इसी वक्त आपको चेक करना है तो वही ऑप्शन आल्सो मिला है, एक कॉल्ड एड इन्स ऑप्शन। सो क्या डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेगा वो उपयोग करके वो फ्यूचर वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको क्रेडेंशियल में अवेलेबल है। सो यू शुड नॉट फील दैट आई हैव लॉस्ट द फाइल, मिस द फाइल, मेरे को कैसा रिट्रीव करना पड़ेगा, मैंने 1 महीने पहले अपलोड किया था, 2 महीने पहले अपलोड किया था, मेरा मालूम नहीं है वो कैसे मैंने रिट्रीव करना पड़ेगा, मेरे को वो जरूर जाना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट मेरे को जरूर चाहिए अभी। सो यू विल गेट द डॉक्यूमेंट इन योर credential. I will show you where you will available. You go to here, is it visible? I have opened the my folder. Yes, sir. You Yes, go sir. to search box here, search box, you can type the word, so you will find the word add-ins. Is it visible, that folder? You click on that folder, the all the files Yes, are sir. available. आप क्या क्या फाइल अपलोड किया है प्लग इन ऑप्शन यूज करके वो पूरा फाइल इधर अवेलेबल है। अभी मैं दिखा रहा हूँ बॉटम में, अभी 1 साल पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, ये इट्स अवेलेबल हियर। मैंने को ये पर्टिकुलर ऑथर मेरे को पूछेंगे तो मैंने वो डाउनलोड करके वो शेयर कर सकते हो, वो पूरा डॉक्यूमेंट इधर अवेलेबल है। ऐसे ईमेल का भी मैं दिखा रहा हूँ। अभी इधर सर्च बॉक्स में आप ईमेल टाइप करेंगे तो ईमेल समझ, यही फोल्डर में पूरा डॉक्यूमेंट इधर है। So why I am showing this is whatever document you are uploading using the both the feature, either plugins or email submission, the data is very much available in your own credential. You no need to bother that you have lost the files, even it may be 3 months after, 6 months after और 1 साल के बाद में भी आपको जरूर डेटा मिलेगा। So here with I am concluding my presentation, madam. So now I am opening the session for the question and answer. आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। Sir, question from Priyanka. हाँ मैडम। सर ठीक है, हमने उनको जैसे ईमेल के थ्रू उनको मेल कर दिया थीसिस एंड दे आर सेंडिंग अस कि हमारा सिमिलैरिटी क्या है और वो रिजल्ट भेज रहे हैं, तो उसमें हम एडिट कैसे करेंगे? मींस क्या वो लाइक कुछ ऐसा अलग से फॉर्मेट भेजेंगे जिसमें हम एडिट करना है हमारा थीसिस, जो हमें वो बताएंगे कि आपका इतना सिमिलैरिटी था भाई, इतना कुछ ऐसा वो वापस भेजते हैं, फिर मेल फॉर्मेट में ही भेजेंगे वापस आंसर? किसका बारे में मैडम? ईमेल सबमिट करने का पूछ रहे हो और खुद आप चेक करने का पूछ रहे हो? हाँ जी, नहीं ईमेल जो सेंड कर रहे हैं वापस उनका रिप्लाई किस एनालिसिस बारे में पूछ रहे हैं। आपको रिपोर्ट मिलेगा मैडम, डाउनलोड कैसे रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे ना, ड्रिल बिट रिपोर्ट, प्लैगियरिज्म रिपोर्ट मिलेगा, वो रिपोर्ट आप ओपन करके देखेंगे तो कितना % आ गए, मैंने दिखा दिया ना मैडम रिपोर्ट, सिमिलर में आपको रिपोर्ट मिलेगा, PDF में रिपोर्ट मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। So you can decide yourself, depends upon the percentage and the where it has been picking the content. सर ये जो रिपोर्ट मिलेगी इसके साथ साथ हमें सजेशन भी तो मिल सकते हैं ना कि आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं अपने? नो मैडम, नो दैट सजेशन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ रिपोर्ट मिलेगा। रिपोर्ट में वो बता देगा कहाँ सोर्स में किस % का सिमिलैरिटी एग्जिस्ट है आपका डॉक्यूमेंट में। आप क्या मैं सजेस्ट करूंगा, और एक मैच्ड सोर्स में आप खुद देखो टॉप 5। अभी फॉर एग्जांपल आपका डॉक्यूमेंट 20% सिमिलैरिटी दिखा रहे, आप अज्यूम करो 20% में टॉप 5 में एक सोर्स में 5% है, दूसरा सोर्स में 4% है, तीसरा सोर्स में 3% है। मैंने आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो तीन सोर्स में टारगेट करो। यू कैन रिप्लेस दोज कंटेंट, सिमिलैरिटी कंटेंट यू कैन रिप्लेस। आपको सारा टूल्स अवेलेबल है प्लेटफॉर्म में, वो सारा टूल यूज करो। अभी वो कंटेंट का आपकी वो वर्ड में दोबारा लिखकर आप रिप्लेस करेंगे तो जरूर आपका सिमिलैरिटी % कम होता है। तो दिस इज आल्सो वन लीगल वे मैडम, वो कर सकते हो। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर।
Any other questions? Sir, how to I register my email address for Drillbit account? हाँ, आपको सर, आप फैकल्टी मेंबर है सर? No sir, PhD scholar. PhD स्कॉलर को नहीं दे रहे, आपको चेक करना पड़ेगा सर, आपको लाइब्रेरियन के साथ। आपका कोटा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन है ना मैडम? My university registered my email address and send it to Drillbit company. नो 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 नो, यू हैव टू, आपको एक्सेस चाहिए तो आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन को आप चेक करना पड़ेगा। सर अच्छा, हमें हमारी लाइब्रेरी स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल की लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी का वहाँ लाइब्रेरियन, हाँ, आपका कोटा अच्छा। यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन है ना मैडम, यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन। हाँ जी, हाँ जी, आपका They एक्सेस will के log बारे in. में, वो हाँ, एक्सेस करवाएंगे। वो एडमिन है मैडम, उन्होंने आपको खुद क्रिएट करके दे सकते हो। ओके सर, हम So it was इंडिविजुअली only for ऐसे हम लोग faculty नहीं कर member. सकते? अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके सर, फैकल्टी के लिए दे रहे हैं मैडम। थैंक यू सर। इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी पॉलिसी मैडम। Okay, sir. कोई प्रश्न है तो प्लीज। Sir, हाँ if प्लीज। if we want to access this software, how to process to paid सर without हाँ सर बोलिए। without faculty member, can I use this as a single student? Sir, without faculties, so far they are not giving, because they are giving access to the your research guide. आपका रिसर्च गाइड के सामने आप रिसर्च कर रहे हैं ना मैडम सर, आपका गाइड रिसर्च गाइड को दे दिया है। अभी आप स्टिल चाहेंगे तो आपका सबमिट करेंगे तो लाइब्रेरियन आपका डॉक्यूमेंट चेक करके वो बता देंगे सर कितना परसेंटेज आया है आपका। सबमिट करते टाइम तो बहुत टाइम हो जाएगा कि हम एडिट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, तो क्या हमें वो अभी हम मांगेंगे तो देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे वो एक्सेस? अभी वो पूछना पड़ेगा मैडम। क्योंकि एट दैट टाइम ऑफ सबमिशन तो बहुत ही लिमिटेड। करेक्ट, यू आर राइट मैडम, मैं अंडरस्टैंड आपका। अभी क्या होता है मैडम, वो पॉलिसी का मैटर है ना मैडम, वो आपका लाइब्रेरियन को पूछेंगे तो वो बता देगा। जी सर। All right, sir. Thank Sir, you, we sir. want to access the several times when we write the thesis. So correct, several times. So again to go to the library, madam. So that is the option only, no sir. अभी नहीं तो आपको वो पूछो उसको जाकर, कोई मिलकर पूरा रिसर्च स्कॉलर्स मिलकर आपका रिसर्च गाइड के साथ कर वो डिस्कस करो। अभी ऐसी हालत है, अभी एक बार में चेक करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा, चेंज करने के बाद अगेन वी हैव टू अपलोड इसी। सो हमको खुद एक्सेस मिलेगी तो हम चेक करके हम जल्दी जल्दी कर सकते हो, ऐसा आप चेक करो सर अभी। ओके सर। सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप पर्सनली चेक कर सकें ये? आप पर्सनली है सर, अभी 599 रुपीज होता है हमारा प्लेटफॉर्म के विजिट करेंगे तो, ऑनलाइन करेंगे तो आपको मिले। हाँ 599 होता है। अभी आप फॉर वन टाइम और वन डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए वन डॉक्यूमेंट 599। और सर जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में पीएचडी चल रही है उसी लाइब्रेरी से हम प्लेगरिज्म चेक करवा सकते हैं या अदर कहीं? Correct. और करेक्ट जी करेक्ट सर, आप बराबर पूछ रहे सर। आप जो बता रहे हैं 599, ये भी ड्रिलबिट में है, उन्हीं को पे करके करना है? हाँ, या फिर किसी और से? प्राइवेट का मैडम, ड्रिलबिट का है, प्राइवेट का। ओके सर। जी सर, मेरा आंसर नहीं आया सर। किसका सर? अभी आप पूछ रहा था आपका यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन को, आपका यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेटर था, वो एडमिन है आपका एक्सेस देने के लिए, उसको पूछेगी तो वो डिसाइड करेगा आपको देना है ना देना है एक्सेस। आपका फैकल्टी हो गई तो जरूर दे देगा।
जी जी सर, ऐसा हो सकता है कि मैं जैसे कोटा यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ हाँ करेक्ट। और ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर में पोस्टेड हूँ, तो सर हाँ मैं यहाँ भी प्लेगरिज्म चेकिंग करवा सकता हूँ, कुछ ऐसा संभव है? हेलो, हाँ सर बोलिए। जी जी हाँ यू कैन तो डू सर। सी जी आपको क्या है ना, अभी दी ड्रिल बिट इनफ्लिप नेट ने पूरा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया को दे रहे हैं। अभी आपको कोलैबोरेटिव में कर रहे हैं क्या? पीएचडी कोलैबोरेटिव यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं अभी, खुद इंडियन यूनिवर्सिटी में कर रहे हो? जी नहीं सर, इसी यूनिवर्सिटी कोटा यूनिवर्सिटी से ही चल हाँ रही है हाँ और उसी का कोर्स वर्क है। हाँ। सो और जरूर आप फिलहाल जरूर आपको कोटा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन में पूछेंगे तो अभी उसका आपका रिसर्च गाइड को आप सबमिट करेंगे तो उसको क्रेडेंशियल जरूर उसके पास है, वो आपको बिहाफ ऑफ यू वो खुद चेक करके आपको दे देगा। नहीं तो आप कोटा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन को कांटेक्ट करेंगे तो वो बता देगा एक्सेस के बारे में। हेलो, थैंक यू सर। कोई प्रश्न है तो पूछो अभी कोई। पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन? No, sir. हाँ हेलो, No, no question, sir. नो सर ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा सेशन था सर हमारे लिए, दिस वाज क्वाइट न्यू टॉपिक। ओके थैंक यू मैडम, सर, थैंक यू सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी टाइम मैं क्या पूछ रहा हूँ छात्रों को फैकल्टी को, कोई प्रॉब्लम है तो पॉलिसी बारे में ड्रिल बिट यूज करने के बारे में एनी टाइम आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन को आपका क्वेरी भेजेंगे तो वही हमको कांटेक्ट करेंगे, जरूर हम आंसर करेंगे, कोई प्रॉब्लम सर आपका कांटेक्ट नंबर मिल सर सकता है आपका सर? कॉन्टेक्ट नंबर भेज देना सर। नहीं। जस्ट मैं उधर चैट में लिखा हूँ, देखो। जी सर। इट्स नॉट वर्किंग मैडम, चैट इज नॉट वर्किंग मैडम। चैट बंद हो रखी है हाँ सर, एडमिन ने बंद कर ग्रुप में रखी है। शेयर कर दीजिए सर। इट्स नॉट वर्किंग सर। it's not working. Chart is just you note down 944. हमारे एडमिन हमेशा कैमरा ऑन रखवाते हैं, लेकिन कुछ बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं। No, you और can, खुद ही चले जाते हैं। no, 944 820 944 820 4498. So if I am busy, don't offend me. I am not taken your call. Certainly I will get back to you your call once I become a free. While I am driving, I am in the meeting, or if I am थैंक in यू the वेरी busy. मच सर एक बार रिपीट कर दीजिए। 944 जी 820 4498. ओके Thank you. So if you are not having questions, shall we conclude, madam? Yes, sir. Anyone have query? yes. Anyone have any query regarding session? No? Thank you so much, sir, for this wonderful session. Plagiarism Thank checking you. is one of the important part of thesis submission, and we learned very well. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, thank you, madam, for giving me opportunity. Thank you for all the participants for patient hearing for more than our this session. As I had given already my contact number, if you are having any doubt or something, please get in touch with me. Huh? Thank you once All again. right, sir. Okay, madam. I'm Thank you, taking sir. madam. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
Please send this, sir, mobile number in the group. जी नेक्स्ट सेशन 3 बजे से स्टार्ट है या अभी लेफ्ट? 3 से। ओके।